Assalamu alaikum and good morning to all my dear students. This is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. My dear students, without wasting much of our time, let's start with our third part of history's first lesson, tracing changes through 1,000 years. You have already learned about the differentiate of two maps in terms of the information changes with period of time. And another topic we have seen that new and old terminologies, that language has been changed with time so as its meaning and vocabulary too. In this video you are going to learn historians and their sources. Dear students, you have learned about historians, a person who studies regarding the past with the sources that they have found by the study or the things which have written in manuscripts as well as in inscriptions. So, manuscripts and inscriptions are like resources for historians to study about the past. So, let's start with our today's topic, historians and their sources. Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Last year, for example, we have read about rulers of the Gupta's dynasty and Harshvardhana. In this book, we will read about the following 1,000 years from roughly 700 to 1715. जैसा कि हिस्टोरियंस काफ़ी सारे सोर्सेज के बारे में पता लगाते हैं पास के बारे में जानने के लिए, और वो सारे सोर्सेज की वो बहुत ही डिटेल में स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं. जैसा कि हमने देखा था पिछले साल 6th स्टैंडर्ड में गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में. सिमिलरली इस स्टैंडर्ड में भी आपको काफ़ी सारे रूलर्स के बारे में पता लगेगा जो रफली 700 to 1750 में मौजूद थे और उनकी लाइफस्टाइल. Where you will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. तो ऐसे रूलर के रिगार्डिंग जो स्टडी है वहाँ पे कहीं कहीं पे आपको कुछ कंटिन्यूटी मीन्स कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा. द स्टडी of Gupta's dynasty and Harshvardhana, or the informations which we have got from the 6th standard and we are going to learn in 7th standard, you may notice that both are connected to each other. जैसे कि 6th स्टैंडर्ड में जो इन्फॉर्मेशन या फिर जो स्टडी हमने की थी, जो हमने जहाँ से स्टॉप की थी, 7th स्टैंडर्ड में कुछ स्टडी हमको जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी कि वो जहाँ पे स्टॉप की थी वहाँ से अब यहाँ इस स्टैंडर्ड में स्टार्ट होती है. दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, inscriptions, architecture and textual record for their information, but there is also considerable discontinuity. हिस्टोरियंस आज भी जो भी रिसोर्सेज को बेस रखते हैं वो आज भी कॉइन्स के ऊपर, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, आर्किटेक्चर जो भी बिल्डिंग्स बनाते हैं उसके ऊपर एंड जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स उनको मिलते हैं उनके ऊपर वो रिलाई करते हैं. बट उन सारी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं पे कुछ जगहों पे डिसकंटिन्यूटी है, मीन्स के कनेक्शन देखने को मिलता नहीं है. The number and variety of textual records increase dramatically during this period. They slowly displace other types of available information. यानी जो information पहले लिखी गई थी वो टाइम पीरियड के साथ या तो उसमें चेंजेस आ गए हैं या फिर वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे कुछ खो गई है या फिर कुछ अभी भी रिमेन
है, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है या फिर उसका कनेक्शन देखने को मिलता नहीं है. Through this period, paper gradually become cheaper and more widely available. यही टाइम पीरियड के दौरान जो पेपर्स है वो काफ़ी चीप प्राइस में मिलने लगे और ज़्यादातर पेपर का यूज़ कॉमन होने लगा. पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, chronicles of rulers, letters and teachings of saints, petitions and judicial records, and for registers of accounts and taxes. As we have studied in Standard 6 about manuscripts, generally were stored or preserved in monasteries as well as in libraries. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. मीन्स कि जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के जिसके बारे में हम 6 स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, जो ज़्यादातर मोनास्टरीज़ में स्टोर की जाती थी, वहाँ से कलेक्ट करने के बाद या तो उनको लाइब्रेरीज़ में रखा गया है जिसके बारे में आपको पता ही है, एंड उसको आर्चीव्स में रखा जाता है. आर्चीव्स मीन्स अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड. आर्चीव एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. भले ही मैन्यूस्क्रिप्ट्स और ये जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रिजर्व किए गए हैं वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस हिस्टोरियंस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने यूज़फुल नहीं है जितना हमें यूज़फुल लगता है. Why this is so? Let we come to know about that in next paragraph. There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. Means past में उन लोगों के पास, मीन्स हिस्टोरियंस के पास या फिर जो लोग मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर अपने रिकॉर्ड्स लिखते थे, उस टाइम में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी. सो द रीज़न वाई ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाथ से ही लिखी जाती थी. अब हाथ से लिखी जाने वाली मैन्यूस्क्रिप्ट्स में कौन कौन से प्रॉब्लम आते होंगे, दैट यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दैट कि कभी भी आपने अपने फ्रेंड्स की CW या फिर HW कॉपी करने के लिए ली होगी. देन व्हाट काइंड ऑफ ट्रबल और हार्डशिप यू हैव फेस्ड, लेट वी सी. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work. कई मरतबा आप अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग समझ नहीं पाते. सो उसने जो स्पेलिंग मिस्टेक की हुई होती है वो आप भी कर लेते हैं. कई मरतबा उसने जो लिखा हुआ होता है वो आपको समझ में नहीं आता है और आप अपनी समझ से लिख देते हो, तब भी काफ़ी ज़्यादा चेंज उसमें आ जाता है. सेम वे manuscript copying is somewhat similar. As scribes copied manuscripts, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. यानी हो सकता है कि scribes we already have learned this in 6th standard. Scribes were the persons who generally knowing about how to read and write. The small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the
same text become substantially different from one another. जब से एक मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर से दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी किया जाता है तो एक में अगर वर्ड चेंज होता है तो हो सकता है कि दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट में या फिर दूसरे रिकॉर्ड में पूरा सेंटेंस चेंज हो जाए. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. We are totally dependent upon the copies made by later scribes. और ये जो प्रॉब्लम है वो इतनी छोटी प्रॉब्लम नहीं है. Why? Because के जिन लोगों ने पहले जो कुछ भी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी है और उसके बाद की अगर कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली है और अगर उसमें चेंजेस है तो हिस्टोरियंस के लिए ये पता लगा पाना दैट कि कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट्स ओरिजिनल है वो इतना आसान होता नहीं है. As a result, historians have to read different manuscripts, versions of the same text to guess what the author had originally written. जिसके कारण historians को उसके डिटेल स्टडी करनी पड़ती है और अपने एजम्पशन लगाने पड़ते हैं. मीन्स एक गैसिंग वर्क करना पड़ता है दैट कि कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट सही है या फिर ओरिजिनल है जो स्क्राइबर्स ने लिखी हुई है. On occasion, authors revised their chronicles at different times. The 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356. एक ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि एक ओकेज़न पे ज़ियाउद्दीन बरानी जो क्रॉनिकलर था उसने अपना एक क्रॉनिकल लिखा था 1356 में एंड अनदर वर्जन 2 years लेटर और उसके बाद वाला वर्जन उसने 2 साल के बाद लिखा. द टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिडंट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960. यानी दोनों वर्जन एक दूसरे से काफ़ी अलग थे. मीन्स ज़ियाउद्दीन बरानी ने एक जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी वो 1356 में लिखी थी जो उसकी पहली थी. उसके बाद उसने सेकंड जो लिखी वो 2 साल के बाद लिखी. लेकिन हिस्टोरियंस को 1960 तक पता नहीं था दैट कि उसने पहली क्रॉनिकल या फिर पहली मैन्युस्क्रिप्ट भी लिखी थी. It remained lost in large library collection. That's all for today's video. Inshallah, in next video, I will teach you a new topic, new social and political groups. Thank you and have a nice day.